नमस्कार विनोद जी, आपका स्वागत है। विनोद जी, थैंक यू वेरी मच सुनील जी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इसी एक खूबसूरत लाइन के साथ में। जैसे ये खास शो है सिटीजन जस्टिस फोरम, एडवोकेट सुलेमान भीमानी, हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु महासेवा और अथक सेवा संघ अनिल गलगली और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस सुनील शर्मा, आप सभी जानते हैं। तो आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता है इस खास प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है सिटीजन जस्टिस फोरम। कार पार्किंग का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हाउसिंग सोसाइटी में, तो वो आपको अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे, आपके सवाल भी लेंगे। और आगे बढ़ते हुए सुलेमान भीमानी जी कहूंगा उनका स्वागत करें, उनके बारे में बताएं, विनोद संपत के बारे में शॉर्ट्स में डिटेल बताएं। Prolific writer and has authored more than 800 articles on property related matters. He has authored articles, has been quoted in Times of India, DNA, Hindustan Times, Indian Express, Accommodation Times, Free Press Journal, Maharashtra Cooperative Society Times, Janmabhoomi, Sandesh, Free Press Journal, Dalal Street Journal, Madhvi Times, Financial Newsweek, Andheri Times, Vashi Times, and the list is still never ending. In the last 34 years, made as an honorary patron members by the Estate Agents Association. He has been a honorary patron member of Estate Agent Association of India. He is honorary advisor of Federation of Accommodation Industries of India. He has been on the panel of advisors of Maharashtra Chamber of Housing Industry. He has been on the committee of non-occupancy charges formed by the Cooperative Department. He had been on the panel of administrators and inquiry officers appointed by the registrars of cooperative societies. He is the president of the Cooperative Societies, Residents and Users Association. He is an eminent public speaker. He has delivered lectures at various organizations, including Lions Club, Association of India, Estate Agents Association of Pune. Sri Vinod Sampath has pointed out several irregularities in the Bombay Stamps Act 1958, and the authorities have also rectified some of the irregularities. Books authored by Advocate Dharmin Vinod Sampath and Vinod Sampath is Cooperative Societies Ready Reckoner in 2019, Cooperative Guide in 2019, Conveyance for Cooperative Societies in 2019, Cooperative Societies and Criminal Law in 2019, Answers to Your Questions on Cooperative Societies in 2019, Specimen Petition in Cooperative Code 2019, 2019 Stamp Duty Ready Reckoner Mumbai, and 2019 Specimen Resolution. So let's welcome Vinod Sampath ji, and he's always been a friend since 2005, a good guide to me. So whenever we discuss about the activism about the cooperative societies, how the corruptions have been taken place in the deputy registrars level, and how a normal member is being targeted. So let's welcome Vinod Sampath ji, please. प्लीज वेलकम विनोद संपत साहब, स्वागत है आपका। सुलेमान जी, सुनील जी, रमेश प्रभु जी, आप लोग की वजह से मैं आज इधर हूँ। मुझे मौका मिला है मेरे व्यूज व्यक्त करने का। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आज अपन 2022 में बैठे हैं। 1947 में अपने को आजादी मिली, यानी कि 75 साल हो गए आजादी मिले हुए, और इसके बावजूद प्रॉपर्टी लॉज में अपन कहाँ है। दुख की बात यह है 75 साल के बाद में भी फ्लैट परचेजर्स को जस्टिस नहीं मिल रही है। कार पार्किंग पे आने से पहले मैं थोड़े दूसरे पॉइंट्स को भी टच करूंगा। मेरा मानना यह है कि जब तक आप शाउट नहीं करोगे, स्क्रीम नहीं करोगे, तब तक कोई आपकी परवाह नहीं करता है। माँ भी जो है ना, जो बच्चा रोता है उसको पहले दूध पिलाती है, उसका खाना पहले देती है। इसलिए दो हाथ जोड़ के विनती करके आप जाओगे तो मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे बताया है कि जल्दी कुछ रिजल्ट्स उसके आते नहीं है। अपने को अपने हक के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। और आमतौर में मैंने देखा हुआ है कि सोसाइटी में जो है ना, कई बार एक वेस्टेड ग्रुप होता है, वो कंट्रोल करता है। और खास करके ये चीज अपने को एप्लीकेबल मिलेगी कार पार्किंग के लिए। क्यों अपन उसके बारे में जाते हैं। कार पार्किंग का जो प्रॉब्लम है दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब दिन ऐसे आ चुके हैं कि झाड़ू वाला भी अपनी बिल्डिंग में झाड़ू मारने के लिए भी गाड़ी में आएगा तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा।
जगह जो है अपनी बहुत ही स्कैर्स है। गवर्नमेंट हर जगह का कंस्ट्रक्शन के लिए विदाउट प्लानिंग परमिशन देती है, और उसके लिए उसका ताजा उदाहरण है मेट्रो। आज आप जब देख रहे हो सब जगह पे मेट्रो के लिए उन लोग गवर्नमेंट कर रहे हैं, इंटेंशन इज वेरी गुड। पर आपने ये क्या सोचा है? ये सोचा है कि 25 साल, 30 साल, 40 साल या 50 साल के बाद में जब ये बीम्स और पिलर को प्रॉब्लम आएगा तो एक पिलर की वजह से पूरी मेट्रो रेलवे लाइन बंद होने वाली है। दैट इज द केस बिकॉज वी आर नॉट डूइंग द प्रॉपर प्लानिंग। और फ्लैट का जो बनाने के लिए परमिशन दी जाती है, तो उस वक्त गवर्नमेंट ये क्यों इंसिस्ट नहीं करती कि हर एक फ्लैट के पीछे एक कार पार्किंग तो होना ही चाहिए? आज मान लो अपने हिसाब से हर एक फ्लैट के हिसाब से एक होना चाहिए, और समझो बिल्डर को वो फैसिलिटीज कंसेशन म्युनिसिपल कमिश्नर देते हैं, म्युनिसिपल ऑफिसर्स देते हैं, तो कैसे कंसेशंस मिलते हैं वो सबको मालूम है। हमारे एक सीएम के वर्ड्स मेरे को एक याद आते हैं, स्टैंडिंग कमिटी इज एन अंडरस्टैंडिंग कमीशन कमिटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन। और कई लोग को बीएमसी को बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजाय ऐसे ही समझते हैं कि बैचलर्स एंड मास्टर्स ऑफ करप्शन है। ये एक इंप्रेशन है। उसी तरह से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को भी कहा जाता है कि करप्शन डिपार्टमेंट है। आज आप मेरे अनुमान से 100 में से 10 जन भी उसे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के वर्किंग से हैप्पी नहीं है। और उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे पहली वजह यह है कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार और ये जो ऑफिसर्स जो है अपॉइंटेड है, उन लोग दे मेनी टाइम्स बिहेव लाइक अ डिक्टेटर। मुझे तो ये मालूम नहीं रहता है कि छोटी छोटी चीज के लिए डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन में क्यों पुअर है। व्हाई शुड अ पर्सन गो टू द रजिस्ट्रार? जो भी बात करनी है वो जूम मीटिंग से करो ताकि सबका टाइम बिगड़े। आज मैं कोई डिपार्टमेंट में जाता हूँ और मेरे को 2 घंटा बैठना पड़ता है, तो मेरा टेम्परेचर गुस्सा आने वाला ही है मेरे को। आज हियरिंग में आप जाओ, 50-50, 75-75 हियरिंग, 100 हियरिंग लगाए जाते हैं, और कैपेसिटी 20 हियरिंग की भी नहीं है। तो उनसे अच्छा व्हाई डोंट वी गो फॉर अ सिस्टम ऑफ रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स? जो भी तुमको पॉइंट देना है रिटर्न आर्ग्यूमेंट करो, आपका आने जाने का टाइम बच जाए। नाउ अपन जाते हैं प्रॉपर्टी की बुनियाद कार पार्किंग पे। द ओरिजिन ऑफ कार पार्किंग की जो है वो अपने मॉडल एग्रीमेंट मोफा में था, उसमें आया है। लेट अस टेक द प्रोविजंस ऑफ मॉडल एग्रीमेंट अंडर द महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट। सबसे पहला तो मेरे पास मेरे एक स्टाइल से काम करने के स्टाइल से मैं पहला ये देखता हूँ, क्लाइंट सोसाइटी वाला है या इंडिविजुअल है। और अगर इंडिविजुअल क्लाइंट है तो मैं उसको बेशक कह देता हूँ कि तेरे के जीतने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ब्रीफ तो मैंने देखी ही नहीं है, फिर भी मैं इस तरह से बात करता हूँ। और उसकी वजह क्या है उसके बारे में मैं आपके पास आकर समझाता हूँ। जो बेचारा सेक्रेटरी बनता है, ऑनरी सेक्रेटरी, उसको बिल्डिंग को साथ में लेके चलना पड़ता है। आज आप ये मुझे बताइए कौन सी सोसाइटी कानून से चलती है? मैं ये रिपीट करता हूँ, कौन सी सोसाइटी कानून से चलती है? आज यहाँ पे 50 मेंबर्स या ज्यादा जो भी पार्टिसिपेंट्स है, उसमें से मेरे को एक सोसाइटी का मेंबर बताए पार्टिसिपेंट्स में से कि मेरी सोसाइटी कानून से चलती है, तो मैं उन्हें सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, क्या आपको पता है कि सोसाइटी के कानून के मुताबिक द पर्सन हु इज हैंडलिंग कैश हैज टू गिव सिक्योरिटी टू द सोसाइटी? मैं करोड़ों रुपए का मालिक हूँ फ्लैट का, मैंने ढेर सारा इन्वेस्टमेंट किया और गलती से मैं मैनेजिंग कमेटी मेंबर बना हूं। आज मैनेजिंग कमेटी मेंबर बनने के बाद में मेरे को सिक्योरिटी देनी पड़े सोसाइटी को, तो ये कहाँ का इंसाफ है? और मान लो मैंने सिक्योरिटी दी भी 2-5 हजार रुपए की, अगर मैं फ्रॉड करने वाला हूं तो उससे मेरे को क्या फर्क गिरने वाला है? तो ऐसे आउटडेटेड यूनिक कानून का जो है लिस्ट बहुत लंबा है। यूएलसी स्क्रैप हो गया, आईटी में से प्रोविजंस निकल गए, पर अपने बायलॉज में वो सब प्रोविजंस है। और ऐसा ही एक प्रोविजन था कार पार्किंग के बारे में कि बिल्डर जो कार पार्किंग बेचता है उसको रिकॉग्नाइज करना। तो मैंने खुद ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी कि विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू यू, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कार पार्किंग कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड ऑफ द बिल्डर, फिर भी आपका बायलॉज ये कह रहा है। बाद में कमिश्नर ऑफ कॉर्पोरेशन ने डायरेक्शंस दिए रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सारे डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को, उन लोग ने वो बायलॉज अमेंड करवा दिए। नाउ कमिंग बैक टू आवर कार पार्किंग टॉपिक,
इसकी बुनियाद जो है वो आती है मोफा में, क्योंकि रेरा तो अभी अभी जन्म लिया है और बल्क अपनी प्रॉपर्टीज है वो मोफा में है। तो मोफा क्या कहता है कि थोड़े मॉडल एग्रीमेंट एक बताया गया है, और मॉडल एग्रीमेंट में कहा गया है ये सारे क्लॉसेस कंपलसरी है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 और 22 नंबर का। दूसरा एक क्लॉज कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी कार्ड में जिसका नाम है उसको आपको पार्टी बनाना ही पड़ता है कंफर्मिंग पार्टी में, और वो कंफर्मिंग पार्टी नहीं बनाया है तो टाइटल कैन नॉट पास। ये पॉइंट मैं आप सबको इसलिए खास बता रहा हूं क्योंकि कन्वेंस के मैटर्स में अगर बिल्डर ने आपके एग्रीमेंट में ओरिजिनल ओनर को नहीं बनाया है तो उसको बोलिए कि उसका एग्रीमेंट डिफेक्टिव है और सबके स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के पैसे वो वापस उसको खुद के खर्चे से करे। इस तरह से आप प्रेशर टैक्टिक देंगे तो आपका कन्वेंस भी इमीडिएटली आ जाएगा। कन्वेंस के लिए सोसाइटी को बिल्कुल एक भी पेपर पे साइन करना जरूरत नहीं है। ये डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो इसलिए आपको किधर भागना है। आपको एक भी जगह जाना नहीं है, आपको कोई भी पेपर पे साइन नहीं करना है। कन्वेंस आपको मिलने वाला ही है, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है अलका बोस के जजमेंट में। इसलिए कन्वेंस के लिए आपको कोई भी पेपर इंक्लूडिंग साइनिंग एट द रजिस्ट्रेशन ऑफिस बिल्कुल जरूरी नहीं है। और आपकी प्रेयर ये नहीं होनी चाहिए कि मेरे को कन्वेंस चाहिए। कन्वेंस इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। आपकी प्रेयर ये होनी चाहिए कि मुझे प्रॉपर्टी कार्ड सोसाइटी के नाम का चाहिए, मुझे वाटर बिल सोसाइटी के नाम का चाहिए। सबसे पहले प्रॉपर्टी का जो कन्वेंस का डॉक्यूमेंट्स आता है तो उसमें 90% इवन द प्रोफेशनल्स आर नॉट अवेयर व्हाट दे हैव टू पे। प्रॉपर्टी दो तरीके होती है, फ्री होल्ड होती है और लीज होल्ड होती है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज लाइक सोना एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज लाइक चांदी। तो समझो 999 का इयर्स का लीज है और 10 साल निकल गए हैं तो आपको डीड ऑफ असाइनमेंट करना है 989 इयर्स का। So that is very very important which you have to note whether it is freehold or leasehold और आपको क्या मांगना है एज ए सोसाइटी। सेकेंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मॉडल एग्रीमेंट एक बार पढ़िए। मॉडल एग्रीमेंट क्या कहता है, उसका जो क्लॉज है ना, क्लॉज नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। The flat purchaser hereby agrees to purchase from the promoter and the promoter hereby agrees to sell to the flat purchaser one flat for flat number so and so for the price of rupees dash, including rupees dash being the proportionate price of the common areas and facilities appurtenant to the premises. अभी ये प्राइस पे मैं जो दाम दे रहा हूँ वो मैंने फ्लैट का दाम सिर्फ 4 दीवार का नहीं दिया है, पर मैंने परसेंटेज इंटरेस्ट इन द कॉमन एरियाज का भी दिया है। उसी की वजह से ओपन पार्किंग, स्ट्रीट पार्किंग, ओपन टेरेस, ये सब प्रॉपर्टी पे मेरा एवरी फ्लैट परचेजर का हक है। बिल्डर को ये बिल्कुल बेचने का अधिकार नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मोफा के कानून के अंतर्गत है। दूसरे कार पार्किंग के टॉपिक पे आगे जाने से पहले मैं एक दूसरा क्लॉज ड्रॉ करता हूँ मोफा का आपको। Clause number 4. The promoter hereby declares that the floor space index available in respect of the said land is dash square meters only, and that no part of the said floor space index has been utilized by the promoter elsewhere for any purpose whatsoever. कहने का मतलब ये है कि जब मैं ऐसा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो मैंने सिर्फ तुमको ये बताया है कि ये मेरा और राइट है एफएसआई में, टीडीआर में। आज कोई बिल्डर बैलेंस एफएसआई रखता ही नहीं है। वक्त के साथ में टिटबिट, फंजिबल एफएसआई, फंजिबल टीडीआर या तो एफएसआई जो 2034 में मिला है, तो वो सारे के एडवांटेजेस मिलते हैं जो बिल्डर को कोई राइट नहीं है उस पे, उसको वो एनकैश करना चाहता है और इसके लिए वो आपको एग्रीमेंट के क्लॉसेस बनाता है, ये सब दिखाता है। अगर बिल्डर एक मेंबर को पार्किंग नहीं देता है तो मेंबर के पास ढेर सारे ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन तो यही है कि जितने भी कार पार्किंग है उसके लिए वो कोऑपरेटिव कोर्ट में जा सकता है, वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ चीटिंग। जब वो प्रॉपर्टी मेरी है तो मेरी प्रॉपर्टी में दूसरे को राइट कैसे मिला पार्किंग का? बिल्डर लोग भी क्या होशियारी करते हैं, उन लोग बोलते हैं हम लोग लेटर ऑफ अलॉटमेंट देते हैं, उन लोग स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भर के वो नहीं करते।
बिकॉज उनको मालूम है उन पे तुरंत क्रिमिनल केस हो जाएगा अगर उसने पैसा लिया है तो। आज एज अ मेंबर यू हैव गॉट मेनी राइट्स, और वो राइट्स जो है ना अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द ब्रूट फियर ऑफ मेजोरिटी, माइनॉरिटी सेगमेंट कुछ बोलती नहीं है, और मेजोरिटी माइनॉरिटी के पास इतना पावर है ये सब चीज में, सोसाइटी चाहे कुछ भी रेजोल्यूशन पास करे, गलती से भी पार्किंग के लिए आप रजिस्ट्रार के पास मत जाना, बिकॉज रजिस्ट्रार हैज गॉट नो जुरिस्डिक्शन इन मैटर्स ऑफ पार्किंग। पार्किंग का जो मैटर है दैट इज नॉट एट ऑल विद इन द परव्यू ऑफ द रजिस्ट्रार। पब्लिक को शॉर्टकट चाहिए, वो समझते हैं कि रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और कई बार स्पीड मनी से भी काम हो जाता है। दैट इज अ रॉन्ग इम्प्रेशन। और मेरा तो ये मानना है कि आपके बात में अगर दम है तो आपको एक जगह पे भी स्पीड मनी देने की जरूरत नहीं है। यू कैन फाइट फॉर योर राइट्स। प्लीज यूज द सोशल मीडिया एक्सटेंसिवली। आप किधर भी बैठे, आपको कोई भी डाउट आता है कि कुछ भी है, सीनियर्स ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, सीनियर्स ऑफ इन द गवर्नमेंट, उन लोग को ट्विटर पे कांटेक्ट कीजिए, फेसबुक पे कांटेक्ट कीजिए, एंड यूज योर टाइम टू एजुकेट अदर्स आल्सो। डोंट वेस्ट योर टाइम एट एनी गवर्नमेंट ऑफिस, बिकॉज मैंने देखा है कई बार कि आदमी लोग गवर्नमेंट ऑफिस में जा जाके एक एक घंटा, दो दो तीन घंटा बैठते हैं और फ्रस्ट्रेट होके वापस आते हैं। योर एवरी मिनट इज वैल्यूएबल एंड यू हैव टू exert yourself in a proper manner. We have to understand the limitations of the government officer. एक एक रजिस्ट्रार के पास 2-2 हजार सोसाइटी है, 1000 सोसाइटी है, 500 सोसाइटी है, तो आपको कैसे जस्टिस देगा? उन लोग के पास एक ही क्वालिफिकेशन है, कोई भी गर्म आदमी को कैसा ठंडा करना। दे डोंट गो बाय लॉ मेनी टाइम्स बिकॉज उसके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। आज अब उसके रोज के इतने लेटर्स आते हैं, सो दे जस्ट डिले द मैटर्स। उनको मालूम है जितनी मैटर डिले होती है तो आते तो इससे ही निकल जाती है। सो मेरा आपको ये कहना है कि यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज टू द पॉइंट। wherever you feel you can get some proper thing, you have to assert your right. Registrar has got no power to award damages in the nature of fine. रजिस्ट्रार के पास आपको मेंबरशिप के लिए भी जाओगे तो वो उसको फाइन नहीं कर सकते। बराबर आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो मेंबरशिप के लिए, तो वहां आपको मेंबरशिप भी दे सकते हो और फाइन भी दे सकते हो। ऑफ कोर्स मेंबरशिप के लिए रजिस्ट्रार के पास जाना बेटर है क्योंकि वो क्विक हो जाएगा, बट साइमल्टेनियसली इन योर एप्लीकेशन यू हैव टू रिजर्व योर राइट टू गो टू कंज्यूमर कोर्ट टू क्लेम डैमेजेस, एंड उसपे जो अपन लेते हैं वो बहुत ही अच्छा तरह से उसका रिजल्ट आता है। आपको आपके सोसाइटी के मेंबर्स कुछ प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस है। You can request the registrar to appoint an authorized officer with certain powers to get the things ventilated what you want. This is a very good thing which is rarely used by members of the cooperative society. Second thing is you can go against the managing committee members in cooperative court, make the society a party and the members of the managing committee a party, and pray for the appointment of a court commissioner on the flats of the managing committee members. You can also go for 83 and 88 action against the managing committee members. और ये बेस्ट उसका एग्जांपल है डीम कन्वेंस। डीम कन्वेंस में लाखों रुपए सोसाइटी के मेंबर्स के बर्बाद हुए हैं। एक छोटा सा फॉर्म भरने का है और वो फॉर्म भरने के लिए लाखों रुपए लिए जाते हैं। So in that particular thing, when you put this pressure, we have seen some societies even paying money in under donation to under taking ATG benefits, और हो सकता है वहां से वापस कैश उसको आया रहेगा, and that way huge expenses are shown at in this particular for getting deemed conveyance. और सोसाइटी में कोई बात छुपती नहीं है। आज आपको जो बात कर रहे हो, जिस तरह से कर रहे हो, मिनट्स में आपने रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है, पर मेंबर्स को कई चीज मालूम रहती है। 5 साल के बाद में भी जब डिस्प्यूट निकलता तो ये सारी चीज बाहर निकल सकती है और ये सारी चीज क्रिमिनल है। और इससे अच्छी चीज का हमने देखा है कि कई बार हमने तो ऐसा भी देखा हुआ है कि सोसाइटी ने पैसे निकलवाए, डीम कन्वेंस के दिए और रिसिप्ट नहीं दिए। तो एवरी रुपी ऑफ द सोसाइटी हैज गॉट टू बी प्रॉपरली अकाउंटेड। और डीम कन्वेंस में ये ढेर सारे चीज देखी गई है। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन स्पोकन अबाउट डीम कन्वेंस, उसके बारे में मैं नहीं जाता हूँ। पर मेरा पॉइंट ये है कि पार्किंग के लिए अगर बिल्डर ने किसी को पार्किंग अलॉट किया है, चाहे वो ओपन पार्किंग है, स्टील्ड पार्किंग है, वो हर एक की प्रॉपर्टी है। अगर आप कोऑपरेटिव कोर्ट में जाते हो तो आपको पार्किंग में एक चीज का ख्याल रखना है, यू रिक्वायर
the names of the members who have been allotted car parking by the society. अगर वो नहीं है तो आपके पास ऑर्डर आने के बावजूद भी इट विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेबल. आपको कोऑपरेटिव कोर्ट में अगर जाते हो तो पहले सोसाइटी के सामने जाओ, एक मिसलेनियस एप्लीकेशन करो और सोसाइटी से वो लिस्ट लो कौन से मेंबर को क्या पार्किंग दी गई है. एक बार वो आ जाता है, बाद में आपकी पिटीशन अमेंड करके वो सारे लोग को आप पार्टी बनाइए. देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट अ वेरी गुड रेमेडी. बिकॉज आज कोर्ट ऑर्डर देगी पर वो ऑर्डर का इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकेगा तो उसका मीनिंग क्या है? इट्स अ पेपर ऑर्डर. आज मान लो यू गेट समथिंग, यू शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट. अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो इट हैज गॉट नो वैल्यू. आज फॉर एग्जांपल कोर्ट बोलती है इसको पार्किंग के ऊपर जगह ही नहीं है तो कहां से दोगे? दैट्स व्हाई व्हेन यू आर गोइंग टू कंज्यूमर कोर्ट you can ask specific prayers from the society that society should allot. As because society के consumer के laws में only society is the consumer, individual members or the managing committee members are not the consumers. But when you go to cooperative court, you have to make all the members a party, and that particular order which is obtained from cooperative court will be binding on other members also. पार्किंग जो है कई बार बिल्डर दो पार्किंग तीन पार्किंग भेज देते हैं तो वो सब चीज में उसको राइट नहीं रहता है. इफ यू हैपन टू बी अ परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी, समझो कोऑपरेटिव सोसाइटी में फॉर्म करना, प्राइवेट लिमिटेड करना, अपार्टमेंट में ओनर करना, वो सब लीगल एंटिटीज का बिल्डर को पावर है. आज समझो एज अ लॉयर मेरे पास एक क्लाइंट आता है, बोलता है कि संपत साहब हमारी बिल्डिंग में जो हम बांधने वाले 70 फ्लैट है और मैं 40 फ्लैट ले रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं उसको तुरंत पहली एडवाइस मेरी यही रहेगी, या तो प्राइवेट लिमिटेड बना या तो बाद में बना अपार्टमेंट ओनरशिप, बट नेवर मेक द मिस्टेक ऑफ फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का फंडा है वन मेंबर वन वोट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए कोऑपरेटिव में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड पर्सनल पार्टिसिपेशन. पावर ऑफ अटॉर्नी से आप ढेर सारी चीज कर सकोगे पर ये बिल्कुल आप नहीं कर सकोगे. आप गाड़ी समझो किसी की एक जगह पे, कई बार पार्किंग में डीसी रूल्स में भी आप देखेंगे ना, थोड़े बड़े पार्किंग होते हैं, थोड़े छोटे पार्किंग होते हैं. आज पहले के जमाने में लिमिटेड गाड़ी थी, अभी तो ढेर सारी गाड़ी के टाइप्स आ गई. आज हो सकता है मर्सिडीज की बड़ी जगह रखेगी और मारुति को छोटी जगह लग रही है, तो पार्किंग की जो जगह है उसके लिए भी बहुत झगड़े होते हैं. सो यू हैव टू चूज दैट पार्किंग एंड यू कैन ऑल्सो मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर दैट द पार्किंग शुड बी मेड रोटेशनल. आज बल्क ऑफ द प्लेसेस में क्या होता है कि समझो 50% ऑफ द पार्किंग इज ऑलवेज एम्प्टी, बिकॉज कई आदमी घर से ऑफिस में जाता है, तो जब वो ऑफिस में जाता है तो घर का पार्किंग खाली होता है. तो अपन सोसाइटी चाहे तो उसको उसमें भी रेगुलेट कर सकते हैं कि ओनली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और एनी मेंबर कैन पार्क द व्हीकल एट अ प्लेस. हमने देखा है कि कई सोसाइटीज में ऐसी भी मस्ती होती है कि उन लोग दे टेक अ they take some money from members. कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिपॉजिट लेने का कोई अधिकार नहीं है पार्किंग के लिए. द राइट फॉर बोरोइंग्स आर रिस्ट्रिक्टेड ऑफ द सोसाइटी. लिमिटेड बोरोइंग्स सोसाइटी कर सकती है. इसलिए कभी भी सोसाइटी में कोई आपको पूछता है कि आप 50,000 रुपया दो आपको पार्किंग दिया जाएगा, that will not be the correct approach which you should always remember. पार्किंग के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट जो है पार्किंग का, वो है पंचाली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, नालचंद लल्लूचंद वर्सेस ये. उसमें कोर्ट का कई सारे प्रॉब्लम्स थे. बिल्डर चाहता था कि एडिशनल कंस्ट्रक्शन करे, उसके लिए सोसाइटी ने उसको रिफ्यूज किया, तो ये मैटर हाई कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, और कोर्ट का ये कहना था कि पार्किंग और दूसरी एम्यूनिटीज है, सोसाइटी की प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी टैक्स कौन भरता है? सोसाइटी भरती है वो जगह की. एनए टैक्स कौन भरता है? सोसाइटी भरता है. तो बिल्डर का राइट उस जगह पे कैसे आ गया? और कोर्ट ने बहुत क्लियर वर्ड्स में कहा बिल्डर को सिर्फ बेचने का अधिकार है गैरेज एंड फ्लैट. फ्लैट की व्याख्या ये है सेपरेट एंड सेल्फ कंटेन्ड सेट ऑफ प्रीमाइसेस. अगर कुछ भी चीज ओपन टू स्काई है या ओपन फ्रॉम वन ऑफ द साइड्स, देन दे कैन नॉट कंस्ट्रक्ट इट. बिल्डर कैन नॉट सेल इट. पहले जमाने में गैरेज डेफिनेटली बिल्डर बांध सकता था और बांध सकता है.
आज स्टिल्ड पार्किंग है। बीएमसी ने देखा कि जो गैरेज देते थे ना, तो गैरेज का मिसयूज होने लगा और बीएमसी के पास मशीनरी नहीं है। आपके आजू बाजू में भी आपने देखा रहेगा कई जगह पे गैरेज है और वो गैरेज में कमर्शियल एक्टिविटी होती है। तो ये सब चीज को रोकने के लिए बीएमसी ने फाइनली पॉलिसी डिसीजन ही ले लिया कि वी विल कीप इट ओपन फ्रॉम ऑल साइड। इसलिए वो स्टिल्ड पार्किंग या ओपन पार्किंग करते हैं। स्टिल्ड पार्किंग का प्रॉपर्टी टैक्स भी लिया जाता है, बट दैट इज इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इन एफएसआई। इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एफएसआई, इस पे वो सबका राइट्स रहता है। कई बार हमने देखा है कि जब मेंबर्स के सोसाइटी के एग्रीमेंट करते हैं ना, तो उसमें लिखते हैं फ्लैट अलोंग विद पार्किंग। दिस इज अ रॉन्ग थिंग। ये चीज कैसा आवे तो सोसाइटी हैज टू टेक प्रॉपर स्टेप्स। प्रॉपर स्टेप्स यानी ये नहीं कि मेंबरशिप को रिजेक्ट करे, बिकॉज द कंसेप्ट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन मेंबरशिप। You cannot stop the society's membership for flimsy reason. You cannot stop the membership of the society for flimsy reason. आपको क्या करना चाहिए? इस तरह का एग्रीमेंट आता है तो पहले मेंबर को रिक्वेस्ट कीजिए, आउटगोइंग इनकमिंग को, प्लीज इस तरह का एग्रीमेंट मत कीजिए, डीड ऑफ रेक्टिफिकेशन कीजिए और वो पार्किंग का स्पेस निकाल डालिए। अगर वो नहीं निकालते तो यू हैव टू गो टू सिटी सिविल कोर्ट फॉर गेटिंग दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड एज null and void. Because parking is a property of the society, I cannot enhance on the right. This is an act of cheating, a wrongful act, for which you have to take civil as well as criminal action against all those type of persons who have exceeded that authority. The issue arises is, तो member कहेगा मैंने तो बिल्डर को पैसा दिया है, जब मैंने पैसा बिल्डर को दिया है तो मेरा ये प्रॉपर्टी पे राइट हो जाता है। ऐसी एक मैटर आई थी अरेंजा आर्केड में। उसमें एक मेंबर ने थोड़े जगह बेसमेंट में ली बिल्डर के पास से, तो सोसाइटी बन गई, 5-7 साल सब ठीक तरह से चला। बाद में कमिटी बदल गई और नई कमिटी ने क्या कहा कि तुम्हारा ये जगह पे राइट नहीं है। तो जब वो मैटर कोर्ट में गई तो कोर्ट में जब दलीलें होने लगी तब वो मेंबर ने यही कहा कि भाई मैंने तो पैसा दे के ये खरीदा है, मैं 5 साल के ऊपर से जगह में पार्क कर रहा हूँ, किसी को एतराज नहीं है, तो नई कमेटी कैसे मुझे रोक सकती है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई तुमने है ना फ्लैट ही सिर्फ खरीदा है, पार्किंग नहीं खरीदा है। तो मेंबर का ये कहना था कि भाई मैंने पैसे दिए हैं, मुझे अन्याय हुआ है। तो जज ने कहा बेशक आपने पैसे दिए रहेंगे, आपको अन्याय भी हुआ है, तो वो अन्याय का रेमेडी आपके पास जो है दैट इज अगेंस्ट द बिल्डर, यू गो टू द बिल्डर, फाइट विद हिम। बट जहां तक कोऑपरेटिव सोसाइटी का राइट है, ये जगह फ्री ऑफ एफएसआई है एंड सोसाइटी हैज, द कोर्ट ने ये कहा कि पार्किंग जो है दैट इज अ कॉमन एरिया एंड एमेनिटीज एंड दैट राइट इज एक्सक्लूसिवली ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी कैन फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशंस पर्टेनिंग टू पार्किंग। कई सोसाइटी में क्या करते हैं कि टू कर्टेल द नंबर ऑफ व्हीकल्स, उन लोग एक्स्ट्रा चार्जेस रखते हैं सेकंड कार पे, थर्ड पार्किंग पे, उस तरह से। Taking into consideration the parking space available in the society, society can frame such rule. But society is not a profit-making body कि पहला कार का 100 रुपया रखो, दूसरा कार का 10,000 रुपया रखो. The charges which are being framed by the society have to be reasonable, just and fair. That is very, very important. और parking की चीज के लिए I am of the opinion that cooperative societies are not properly utilizing their resources. आज अपन देखते हैं कि कई जगह पे स्टैक पार्किंग बनाए जाते हैं नए बिल्डिंग में। अब स्टैक का पार्किंग जो बनाए जाते हैं वो ज्यादा करके तो कपड़े सुखाने के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं आता है, क्योंकि उसमें आदमी को रोज गाड़ी नीचे लाने के लिए वो मशीन प्लस मैनुअल रिक्वायरमेंट इज देयर एंड दैट इज वेरी कॉस्टली। कई जगह पे हमने देखे है कि प्लान में स्टैक पार्किंग दिखाए गए हैं और इन रियलिटी देयर इज नो पार्किंग। वो पार्किंग का खाली पेपर पे, प्लान पे बीएमसी के ऑफिसर के कॉपरेशन से ये सब होता है, पर इन रियलिटी दे डोंट प्रोवाइड। उसी तरह से कई जगह पे बिल्डर्स मस्ती कैसे करते हैं कि बड़ा फ्लैट 900 स्क्वायर फीट का है, प्लॉट का साइज छोटा है, तो छोटी साइज में उस तरह से करेंगे तो पार्किंग दिखाना पड़ेगा। अगर वो बेसमेंट में भी पार्किंग दिखाते हैं तो कई बार वायबल नहीं होता है, और फिर भी कई बार ऐसा भी होता है तो उसके बावजूद शॉर्ट गिरता है। तो बिल्डर लोग मस्ती कैसे करते हैं कि जो प्लान जो बताते हैं ना
उसमें 450 स्क्वायर फीट के 2 फ्लैट दिखा देते हैं, और बिल्ड मेंबर को ऐसा भी कहा जाता है, परचेजर को, देखो हम आपकी स्टैंप ड्यूटी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट रियलिटी इज एंटायरली डिफरेंट। रियलिटी एकदम अलग है। यहाँ पे आप जब भी फ्लैट लेते हो तो आपको एकदम अच्छी तरह से वो एग्रीमेंट सब देखने हैं, पार्किंग का प्लान क्या है वो भी देखना चाहिए आपको, इसलिए आपको मालूम गिरेगा कि किस तरह से है। रेरा के रूल्स में जो है, जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, तो वहां पे उन लोग को अभी बिल्डर को पार्किंग का जो है सेल करने का पावर दिया गया है, बट यू हैव टू कीप दिस वन थिंग इन माइंड, दैट प्रॉपर्टी जो पार्किंग का जो है, वो प्रॉपर्टी बिल्डिंग के प्लान में होना बहुत ही जरूरी है। अगर प्लान में नहीं है तो वो नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, जब भी आपके सोसाइटी में मीटिंग्स होती है, बात होती है, तो आप लोग हमेशा ऐसे ही बात करते हैं, बाय लॉ ये, बट सुप्रीम कोर्ट का कहना बहुत क्लियर है, बाय लॉज डू नॉट हैव द फोर्स ऑफ लॉ। सोसाइटी में कोई मेंबर ने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया है तो पेनल्टी एट 5 times द मेंटेनेंस चार्जेस विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अपन सोसाइटी में लगा सकते हैं। और ये चीज करने से कई बार सोसाइटीज में अपन ने देखा है कि प्रॉब्लम्स काफी सॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज बाय एंड लार्ज ओपन टेरेस है या पार्किंग का कोई एंक्रोचमेंट करता है, कई बार गाड़ी के आगे गाड़ी लगा देती है, तो उस तरह के केस में यू हैव टू टेक अप द मैटर इन अ वेरी टैक्टफुल मैनर। आज अपन अनफॉर्चुनेटली कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लॉ के साथ नहीं चल रहे हैं। आज रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 7% है, यहाँ पे अपन 21% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो इज इट फेयर? बिकॉज वन हैज टू गो विद द फ्लो, नॉट अगेंस्ट द फ्लो। 21% के रेट एक जमाने में ठीक थे, आज की डेट में नहीं है। सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी की और जनरल बॉडी की मीटिंग्स का वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, पर रियलिटी ये है कि जो सब कोई नहीं करते हैं। आज जो लॉज अपने हैं, तो लॉज इक्वली सबको एंड रियलिस्टिक वे में होने चाहिए। टुडे पीपल आर वेरी वेरी अनहैप्पी विद द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसका एक ताजा मैं एग्जांपल देता हूँ, वो इलेक्शन का है। इलेक्शंस के लिए इतनी सारी चीज है कि इलेक्शन का ऑफिसर आएगा, ये करेगा, वो करेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आते थोड़े साल पहले जब इलेक्शंस होते थे सोसाइटी में, तो क्या प्रॉब्लम था? ये सब इलेक्शन रिलेटेड रूल्स लाने का क्या जरूरत था, और व्हाट इज बीइंग अचीव्ड बाय दैट? ये जो अपन करते हैं तो उससे क्या अचीवमेंट आया? देयर इज नो सच थिंग कि जिससे अपने को हैप्पीनेस मिलते हैं। आज जो रजिस्ट्रार लोग हैं, दे आर क्वासी जुडिशियल ऑफिसर्स। एक पेटिशन वो भी डाली गई थी कि ये लोग दे शुड हैव लॉ नॉलेज एंड दे शुड हैव बी एटलीस्ट एडवोकेट्स। तो वो पेटिशन भी अनफॉर्चुनेटली उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आया। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो ऑफिस में कई बार आप मल्होत्रा हाउस में गए रहेंगे, मैनी ऑफ द मेंबर्स, क्योंकि काफी वार्ड उधर है। थोड़े वर्षों पहले जो लोग कोर्ट में जाते थे, उन लोग कोऑपरेटिव कोर्ट में जाते थे। मैं आपको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल मेस के थोड़े एग्जांपल देता हूँ। मल्होत्रा हाउस का अर्लियर मुझे कहा गया है कि भाड़ा किराया सिर्फ 960 रुपीज था पूरे फ्लोर का। कोऑपरेटिव कोर्ट का भाड़ा जो है करीबन 2000 स्क्वायर फीट की जगह के ऊपर की जगह थी, 640 रुपया था। तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मुझे ये कहा गया है कि उन लोग ने ये जगह जरूरत नहीं है करके कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग में वापस दे दी, और पीजे हाउस में अभी उनके ऑफिस है। 3 साल का एग्रीमेंट किया है और हर महीने का भाड़ा 28 लाख रुपया तय किया गया है, और 9 से 10 महीना काम सिर्फ फर्नीचर करने में गया। मुझे ये कहा गया है कि 3 साल में ये चेंबूर में कोऑपरेटिव कोर्ट आने वाली है, तो 28 लाख महीने का भाड़ा और 3 साल का बाद यूज के लिए जा रहा है। तो आप सोच सकते हो फर्नीचर का और कितना क्रिमिनल वेस्ट ऑफ मनी है। आप कोई भी रजिस्टर ऑफिस में जाओ और जरा तलाश करो, तो काफी स्टेशनरी से लेके कंप्यूटर जो है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने दिए नहीं है, बल्कि प्राइवेट जन के है, ऐसा मुझे कहा गया है। आप चाहो तो ये चीज पे भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मेरी राय में तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, उनके 10% ऑर्डर्स रैंडम दूसरे डिवीजन के ऑफिसर के द्वारा चेक करवाने चाहिए, क्योंकि कई बार जो ऑर्डर्स जो पास होते हैं वो एकदम बराबर नहीं होते, और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज का स्टैंड ये रहता है कि वी आर नॉट दैट मच एक्सपर्ट। आज
दूसरा एक पॉइंट कॉमनली देखा जाता है ये है कि कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स के कुछ झगड़ा होता है या कुछ भी डिस्प्यूट्स होता है या पैसे क्लेम्स के मैटर में बिजनेसमैन की तरह बोलते हैं कि चलो इतना रुपया है, तुम इतना डिस्काउंट देके बाकी का अमाउंट दे दो। कोऑपरेटिव लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि 1 रुपया भी आप राइट ऑफ कर सकते हो। अगर आपको राइट ऑफ करना है तो पहले तो सोसाइटी को जनरल बॉडी में रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ऑडिटर के पास से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, और वो परमिशन लेने के बाद में जो है ना, यू हैव टू गो टू द रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार परमिशन देवे तो ही आप राइट ऑफ कर सकते हो। और मेरी राय में रजिस्ट्रार कभी ऐसी परमिशन नहीं देते। सोसाइटी के रूल्स में कोई डिफॉल्टर रहता है तो उसको जो है ना उसकी कंप्लेन एंटरटेन नहीं करनी चाहिए, ऐसा कानून है। पर यहाँ तो हर डेप्यूटी रजिस्ट्रार का अलग कानून होता है। यहाँ तक कहा गया है कि डिफॉल्टर की कंप्लेन है तो एंटरटेन न करे, ऐसा बोर्ड हर एक रजिस्ट्रार के ऑफिस में होना चाहिए। पर ऐसा कुछ भी जो है वो लोग करते नहीं है। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द कोर्ट जजमेंट्स। पहले अपन विजिटर्स पार्किंग का लेते हैं। टेबल 36 रेगुलेशन 36 टेबल 15 ऑफ द डेवलपमेंट कंट्रोल रूल बहुत क्लियरली बताता है कि पहले के पीरियड में 10% पार्किंग जो है was to be kept for visitors पार्किंग। आज मैं समझो कोई सोसाइटी में जाता हूँ, मेरा मेंबर जो है मेरे को बुला रहा है और मैं उधर जाता हूँ, मुझे पार्किंग नहीं मिलता है, तो आई एम विद इन माई राइट्स टू इमीडिएटली डायल 100 नंबर कि मुझे बिल्डिंग में पार्किंग नहीं अलॉट की गई है, आई एम अ विजिटर। 10% और नए प्लान में 5% है, तो उतनी स्पेस कंपल्सरीली पार्किंग के लिए रखनी चाहिए, which is the law, and a criminal action can be taken against the office bearers of the society if parking space is not being made available to visitors. ग्राउंड रियलिटी ये है कि 100 में से आपको 99 सोसाइटीज में विजिटर्स पार्किंग की फैसिलिटी मिलती नहीं है। So this is a common violation which is seen everywhere because members के पास ही पार्किंग नहीं है तो यहाँ कैसे देवे। कई जगह पे तो ऐसे पार्किंग के दिखाए है पेपर पे कि जो रियलिटी में उधर गाड़ी नहीं जा सकती। तो ये भी सब अपने को कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कई जगह पे देखने को मिलता है। नालचंद लल्लूचंद का जो है ना उसका लैंडमार्क जजमेंट है ये। वो जजमेंट ढेर सारे सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जजमेंट एनेक्स किया जाता है, जैसे कि रॉयल मनोर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस अंगना बरलीदास। वो जजमेंट में भी पार्किंग के लिए इश्यूज थे और वहां पे भी 42 नंबर के पैरा में कहा गया है, जजमेंट नालचंद लल्लूचंद का रिलाई किया गया है और बहुत क्लियरली बताया कि बिल्डर कैन नॉट सेल पार्किंग स्पेस टू एनी प्रोस्पेक्टिव परचेजर ऑफ द फ्लैट और अदर टेनेमेंट्स। मैं आपको बताऊं ऐसे ऐसे बिल्डर है गोरेगांव के, मैं नाम नहीं ले रहा हूं बिल्डर का, एक फ्लैट के साथ में 100 पार्किंग का एग्रीमेंट रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो ऐसे कई बार वो लोग मिसचिफ करते हैं। पार्किंग के जो रूल्स रेगुलेशंस है दे आर वेरी मच क्रिस्टल क्लियर। पार्किंग के जो रूल्स है वो बायलॉज अपन देखे तो बायलॉ नंबर 78 से लेके 84 तक पार्किंग के रूल्स रेगुलेशंस है। किस सोसाइटी उसको पार्किंग अलॉट करेगी, पहले सबको एक पार्किंग मिल जावे वो देखा जाएगा। बाद में मेंबर को उसका व्हीकल खुद के पास होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो जब मेंबर जो है दूसरे को किराए पे देने के एंगल से देवे। और अगर जगह बचती है तो सेकंड पार्किंग भी अलॉट कर सकते हैं, और सेकंड पार्किंग अलॉट करते हैं तो इट शुड बी ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस। द चार्जेस रीजनेबल लेने चाहिए और मेंबर के पास उसकी जो है ना व्हीकल का वो आरसी बुक वगैरह सोसाइटी मांगे तो उसके लिए अच्छा है। बायलॉ नंबर 78 से 84 में पार्किंग के रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं। आज पार्किंग की प्रॉब्लम्स की वजह से कई बार पजल पार्किंग भी बनाई जाते हैं, स्टैक पार्किंग भी कहे जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि बिल्डर लोग जो है ना अपर फ्लोर में 4था 5वां 7वां 8वां माला के घर के बाहर ही पार्किंग का प्लेस दिखाते हैं। आइडिया क्या रहता है कि पार्किंग की जगह ऐसे प्लान में दिखाई गई है, पर रियलिटी वो मेंबर उसको ड्राइंग रूम लिविंग रूम के रूप ऐसा एक रूम की तरह से यूज करता है। और ये बहुत सारे केसेस हुए जेवीपीडी में। उस तरह से प्लानिंग उस तरह से बनाए जाते हैं कि बिल्डर का आर्किटेक्ट जो है ना उसको ही होशियार कहा जाता है। वो मिसयूज जो ओपन स्पेस का
उसका दूसरी तरह से कैसे यूज कर सके। आज हर एक फ्लैट में कई बार देखा जाता है वी हैव नीच एरिया ड्राइंग स्पेस एरिया, तो ये एरिया को कहने के लिए नीच एरिया है ड्राइंग स्पेस है, ये एफएसआई की गिनती में नहीं आता था, पर वो जगह को एज अ पार्ट ऑफ द फ्लैट यूज किया जाता है। नीच एरिया है जो फ्लोर का लेवल है उससे थोड़ा नीचे रहता है और उसमें रेजिस्टेंस स्लैब जो है वो वीक रहता है, बिकॉज उसमें इट इज नॉट सपोज टू टेक अप मोर लोड, पर वो उस तरह से लिया जाता है। और अपने इंटीरियर डिजाइनर आते हैं तो बोलते हैं दोनों को लेवल कर लेते हैं, दीवार तोड़ लेते हैं, और ये सब कॉमन ये होते ही रहता है। so that particular thing is not permitted. अखनूर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्वीटी अग्रवाल का भी दूसरा एक जजमेंट है, और वहां पे भी वो राइट्स के बारे में बताया गया है कि कई बार प्रॉपर्टीज के बारे में वो जो रहता है वन हैज टू टेक इनटू कंसिडरेशन, और बिल्डर जो है कई बार एफएसआई टीडीआर राइट्स भी कहता है वो नहीं बेच सकता है, उसके बारे में वो जजमेंट है। मलाड कोकेल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में भी दिया है कि फर्दर कंस्ट्रक्शन और ब्लैंकेट अथॉरिटी दी जाती है तो अथॉरिटी दैट इज बीइंग गिवन कि आप बोलो कि एग्रीमेंट में दी है तो दैट इज नॉट अ वैलिड अथॉरिटी। कंसेंट हैज टू बी मीनिंगफुल एंड कंस्ट्रक्टिव। आज के बाद में 2 साल के बाद में कंस्ट्रक्शन की परमिशन फ्यूचर में दी जाती है, वो नहीं आती है। लेट मी शेयर विथ यू वन एग्जांपल ऑफ पार्किंग। बहुत साल पहले की बात है, करीबन 30-40 साल हो गए वो बात तो करीबन 25-30 साल हो गए। मलाड में 3 बिल्डिंग है, मेघ, मलार और राग। आई वॉज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द सोसाइटीज। तो यहाँ जो पार्किंग का स्पेस है ना, वहां पे बिल्डर की सिक्योरिटीज होती थी और करीबन 50 से 60 सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे। वहां मेंबर्स ने फ्लैट गाड़ी लगाने की कोशिश की, तो पिक्चर में कैसे आते कांच पाच तोड़ डाले, तो वो सब भी हुआ था। बाद में तो झगड़ा यहाँ तक पहुंचा कि नीचे पुलिस की वानी खड़ी रहती थी, और बाद में सिटी सिविल कोर्ट में हम लोग गए। हमारे साथ में दिनेश गांधी करके एडवोकेट थे, और वेरी ऑफकोर्स इज नो मोर नाउ। तो बाद में कोर्ट में गए और ये सब चीज के बोले ये पार्किंग स्पेस है, एफएसआई की गिनती में नहीं है ये। एंड फाइनली द जजमेंट सोसाइटी को जो है ये सारी पार्किंग की स्पेस थी, करीबन 50-60 के ऊपर पार्किंग की स्पेस थी, वो सब बाद में उनको सोसाइटी को मिल गई थी। सो पार्किंग के लिए इतने झगड़े भी होते हैं कि उसका अपन बयान भी नहीं कर सकते। जहां तक पार्किंग का सवाल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैव गॉट डिफरेंट क्राइटेरियाज एप्लीकेबल। आज 5 स्टार के लिए ज्यादा पार्किंग प्रोवाइड करना पड़ता है, छोटे फ्लैट के लिए जो है वो कम पार्किंग का फैसिलिटी, वो कम पार्किंग प्रोवाइड करना पड़ता है। इसलिए कई बार बिल्डर्स जो है वो पार्किंग की स्पेस न होने की वजह से, बिकॉज प्रॉपर्टी का लेंथ एंड ब्रेथ तो सबको मालूम है, पर उसके लिए जो है वो जगह के ज्यादा बांधने के लिए और कम प्रोवाइड करने के लिए उन लोग छोटे छोटे फ्लैट दिखाते हैं और बाद में वो दीवार बीच में की निकाल डालते हैं। जैसे मैंने कहा है, पॉलिसी ऑफ पार्किंग जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के जो सोसाइटी को एप्लीकेशन करे, एक से ज्यादा पार्किंग उनको मेंबर को देना नहीं चाहिए, और एक से ज्यादा के लिए जो है ना, अगर जगह है तो ही कर सकते हैं। सोसाइटी के कई सोसाइटी में स्टिकर भी दिए जाते हैं कि पार्किंग स्पेस के स्टिकर दे रहे। पार्किंग और गैरेज ये दोनों में भी फर्क, जो ओपन पार्किंग बिल्डर बेच नहीं सकता, गैरेज उसको बेच सकने का अधिकार है। रेरा में जो है अभी रेरा में जो है जो राइट्स दिए गए हैं, बिल्डर्स लॉबी हैव बीन एबल टू कन्विंस द अथॉरिटीज कि यू शुड गिव अस राइट टू सेल द पार्किंग। पार्किंग प्लान में जितना जगह दिखाया गया है उतना कर सकते हैं। आमतौर पे सोसाइटीज में क्या देखा जाएगा कि जो पार्किंग की जगह किधर भी आरजी एरिया है कि जहाँ गार्डन होना चाहिए, बच्चे को खेलने होना चाहिए, खेलने की जगह है, तो वो जगह को भी सब पार्किंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जगह कम गिरती है। ये लोग गार्डन जो है सो मैदान रहते तो मैदान पे वो कंक्रीट करके वो गाड़ी जो है वो उधर लगाने का चालू कर देते हैं। वन शुड नो हाउ टू स्टडी द म्युनिसिपल प्लान। तो बिल्डिंग का प्लान है, पार्किंग प्लान, ये स्टडी करने को आना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एक सिंगल मेंबर को पार्किंग नहीं मिलता है, तो उसका अप्रोच शुड नॉट बी जस्ट गोइंग फॉर द पार्किंग, बिकॉज वो जाएगा तो किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। पर अगर इफ ही मेक्स आउट अ केस दैट देयर इज अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन इन द बिल्डिंग और इन लोग ने नीच एरिया मिसयूज किया है, ड्राइंग स्पेस एरिया मिसयूज किया है, तो वो पॉइंट से आप आगे बढ़ोगे तो हो सकता है कि जल्द देयर विल बी
some particular restrictions on that members and they may give. आप लोग कई बार मॉल में जाते हो तो उन लोग मॉल वाले पैसे लेते हैं पार्किंग के लिए 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, तो दैट इज इलीगल. मॉल में जाने के लिए आपको पार्किंग गाड़ी के लिए कोई पैसा नहीं लेना चाहिए, और ऐसा लेते हैं तो उस पर एफआईआर भी फाइल हो सकती है. इस तरह के लोग ने पार्किंग में किए भी है और एफआईआर भी फाइल हुआ है. ये जो एफआईआर फाइल हुआ है, और दे हैव बीन टोल्ड ऑर्बिट मॉल, इट इज नॉट इन बॉम्बे, इट इज इन कर्नाटका और समथिंग जो है वहां पे ये किया गया था, एंड वो उन लोग को करना ही पड़ा. सिमिलरली आप सिनेमा हॉल में भी जाते हो तो वहां पे भी जो पार्किंग के पैसे लिए जाते, मेरे लाइन इन माय व्यू इट इज इलीगल, बिकॉज व्हाट इज फ्री ऑफ एफएसआई one cannot earn from it, and that is what many shopping malls are doing it. RERA में भी some diversified views है. In Maharashtra, RERA has permitted parking to be sold by builder, but I am told in Chennai they have objected to this thing and they have shown that is a appellate judgment है ऐसा कोई चेन्नई का, वो मेरे पास है नहीं, but there the stand is very clear, you cannot sell parking space, it is an amenity. जो लॉज में आया है सुप्रीम कोर्ट का पंचाली का जजमेंट है नालचंद लल्लूचंद का, दैट वाज प्रायर टू रेरा कमिंग इनटू पिक्चर. इसलिए रेरा जो नहीं था, रेरा के बारे में क्या राइट्स है वो मौका अपने को अब तक मिला नहीं है. सम लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन पार्किंग इज बाउंड टू कम अंडर रेरा. देयर आर मेनी थिंग्स फॉर व्हिच यू कैन टेक एक्शन against the builder, against the society. If you are multiple people, someone should go to RERA, someone should go to consumer court, someone should go to city civil court, someone should go to cooperative court. यानी 5 जन है, 5 जन को पार्किंग नहीं मिला है, तो एक ही साथ में केस क्लब करने के बजाय अलग अलग कोर्ट में अलग अलग तरह से अपन रखते हैं, तो उसका आउटपुट काफी अच्छी तरह से मिलने के पूरे चांसेस है. बिकॉज एक भी जगह से जजमेंट फेवर में आता है तो पूरा इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है, तो उसका अपने को एडवांटेज लेना चाहिए. व्हाट आई हैव सीन इज सोसाइटीज आर नॉट फॉलोइंग लॉ एट मेनी प्लेसेस, दे जस्ट डिपेंड ऑन द सिक्योरिटी गार्ड. सिक्योरिटी एजेंसी को भी रजिस्टर करवाना पड़े, 20 से 22,000, 20 से 25,000 रुपया तक का उसका सैलरी होता है, बट दैट इज एप्लीकेबल फॉर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज. उसमें वो बहुत क्लियर है, सिक्योरिटी गार्ड्स बोर्ड एक्ट का है, और 20 से 25,000 रुपया 8 घंटे की ड्यूटी का रेट है, जो नॉर्मली सोसाइटीज कैन नॉट अफोर्ड. बेस्ट थिंग इन माय व्यू, इफ यू आर harassed by the society, is to approach consumer court, because society is not a consumer but an individual member is a consumer, and the act of the society is an act of deficiency of service and unfair trade practice. अभी लॉज में काफी बदलाव आ चुका है. फाइनेंशियल की आप देखे बात तो फायर का कोई इतना इम्पोर्टेंस देखते नहीं है, और सोसाइटीज में वो भी एक जो है, तो उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि एफआईआर फाइल करो. So your approach should be, when you are facing a fight with the society, you have to corner the society from multiple angles, not just rely on 1 or 2 angles. And lastly, मैं सबको यही कहूंगा कि जब तक प्रॉब्लम एमिकेबली सॉल्व होता है बिल्डिंग में बैठ के, वो बहुत ही अच्छा है. आपको एज एन इंडिविजुअल मेंबर और अ सोसाइटी ऑलवेज पुट इट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट थ्रू ईमेल्स, व्हाट्सएप, एंड प्रिजर्व दिस कम्युनिकेशन, बिकॉज सोसाइटी में एक कॉमन टेंडेंसी है, कोई जवाब नहीं देता है. सो लेट दिस थिंग्स कम ऑन रिकॉर्ड. मैं आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स, सुलेमान जी एंड सुनील जी एंड रमेश प्रभु, फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी to express my view on cooperative society. And if there are any question and answers, I'll be glad to make an attempt to reply to your questions. Thank you, friends. Yeah. Thank you. Vinod Thank you very Sampath ji, much, thank Sampath you sir. Yes. for your time, and you have given a very good explanation about the rights of the members of the society. Now let's hear from Sunil. Sunil, you have any questions on the chat? Model bylaws is also available on Google as PDF. Yes. Thank you.
Sir, where we get that rule book you are the referring to? Pardon? Where we get the rule book you are the referring? It is, I think, Societies. अच्छा, bylaws. सुलेमान जी बोलो. Yeah, rule book. There is one interesting question which has been asked. Yes, Suleiman bhai. Yeah, there is one important question. The developer has obtained Part OC in the year 2018. Yes. So, the developer has obtained Part OC in 2018. Society was बोलिए. taken over my administrator. Developer has not given conveyance. There are some unsold parking and flat. Now developer is selling parking, allotting to parking the members and giving allotment later if through there is the managing committee of society. देखिए, सबसे पहले आपको तो पहले बिल्डर को पार्किंग को बेचने से रोकना है, कोर्ट का इंजंक्शन लेके, और साइमल्टेनियसली क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर डालिए बिल्डर के सामने. थैंक यू. सर, सवाल है टेरेंस का. आई लिव इन old CHS Takshashila Colony Andheri, constructed in 1986. Parking was a first come and first serve basis on open area within a colony. What is minimum maximum parking charges in CHS in charge for 2 or 4 wheelers per month? How to देखिए, get yes. वो क्वेश्चन मेरे सामने ही है चैट बॉक्स में. Yes, बेसिकली जो है ना, फर्स्ट yes. कम फर्स्ट सर्व बेसिस का रूल इज वेरी गुड इफ सोसाइटी इज फॉलोड. जहां तक मिनिमम और मैक्सिमम चार्जेस आर कंसर्न, तो चार्जेस शुड बी रीजनेबल. इट शुड नॉट बी अ प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन. Depending on the type of society, whatever facilities are provided, what security is being provided, on that they can frame rules. So normally 100 to 500 rupees can be considered a reasonable amount. How to get rid Khatara's 4-wheeler amended of the resident members who refuse to pay revised parking charges? तो बहुत सिंपल है. पहले तो मेंबर को रिक्वेस्ट कीजिए, एक नोटिस मारिए, पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कीजिए और टोइंग वैन को बुला के बाहर रख दीजिए. But you please pass proper resolution and do the proper community correspondence. Is in a colony, Takshashila, where 33 buildings are there with almost 1,300 flats, does the individually building keep all the parking charges collected by its member? Are they abounding the share it with central government body? According to me, the question is not properly framed. There Yes. appears to be one federation. In that federation, there may be 33 buildings or 33 society, and the regulation of the common areas is being done by the federation. One has to see the resolution passed by the individual society and the federation. If the authority has been given to the federation to collect these charges, and the parking is being done in the open space belonging to the federation, then they can collect that particular charges. And as I mentioned it, if it is within the area of the individual societies, then the individual societies can keep it. But normally what happens is, एक फेडरेशन जब रहते हैं तो हर एक बिल्डिंग का सेपरेट डिमार्केशन बाय मीट्स एंड बाउंड विद फिजिकल वॉल्स इज नॉट डन. तो वैसे केस में जो भी फेडरेशन का डिसीजन रहेगा, that will be binding on individual societies. But what needs to be seen is the facts and circumstances of each case, how that is there, that is very important. And secondly is, what are the rights given by the individual society. मेंबर्स को जब बिल्डर देते हैं तभी किस तरह से वो ब्राउचर में क्या दिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वट एवर इज मेंशन्ड इन द ब्राउचर इज बाइंडिंग ऑन द बिल्डर. यस सर. आखिरी एक सवाल है. माय सेक्रेटरी हैज हेल्प हिज फ्रेंड टू सेल टू सोसाइटी प्रीमाइसेस स्टील पार्किंग. व्हाट शुड वी डू? नहीं, पार्किंग स्पेस बिलोंग्स टू द सोसाइटी. सोसाइटी कैन पास अ रेजोल्यूशन and take over. Now let me share with you how you have to pass a resolution. अभी कोई मेंबर के पास 2 पार्किंग है, वो जबरदस्ती तीसरी गाड़ी लगा रहा है. आप उसको प्यार मोहब्बत से बोलोगे तो सुनेगा नहीं. तो आपको रेजोल्यूशन ऐसे ही पास करने के, अब दो गाड़ी जो है रखने का, तीसरी गाड़ी रखने के नहीं है. और कोई मेंबर गलती से तीसरी गाड़ी रखेगा तो उसको दोनों पार्किंग ले, आप लोग सोसाइटी विल फॉरफिट इट. तो जब तक कानून का डंडा नहीं दिखाएंगे, उसको इनकन्वीनियंस नहीं दिखाएंगे, तब तक वो लॉ को कोई फियर करेगा ही नहीं. यस. महेश का सवाल है. Hi sir, I wanted to know regarding the rules for the new building which was redeveloped. Can be builders sell the parking? तो जो मैंने जैसे बताया 2034 में बिल्डर का जो प्लान जो है
और रेरा में बिल्डर को पार्किंग स्पेस बेचने का अधिकार दिया गया है। तो अगर पार्किंग स्पेस वो 2034 प्लान में जो रेरा के बेचने का जो राइट है बिल्डर को उसमें देता है, तो यू कैन नॉट ऑब्जेक्ट। बट इफ इट इज पुट इन आरजी एरिया और सम अदर एरिया का पार्किंग है, तो डेफिनेटली यू कैन ऑब्जेक्ट। यस सर, थैंक यू। चैट बॉक्स में इतने सवाल थे। सुलेमान भिमानी जी। Yes, sir. So it Yes, was sir. a very nice session, and I am truly very much thrilled and excited by the presence of Advocate Vinod Sampath. He gave all the answers and explained it in a very simple language. And thank you all for watching this video. And if you like it, you share it. And if you have any issues, you can write to us. Myself and Advocate Vinod Sampath are always ready to help people who are aggrieved. And the next Saturday, the session will be on family matters. If you have disputes between the family, how we should solve it. So next Saturday is also going to be a very exciting Saturday. Yes, अच्छा thank सुलेमान you. जी, वन मिनट सर। मैंने Yeah. पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन दिया था पार्किंग का, बट ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम आई हैव नॉट टेकन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो मेरी Yeah. आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मेंबर्स को चाहिए तो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। Fine. मैंने So, सुलेमान जी को भेजा हुआ है, आपको भी Okay, भेजा है। okay, sir. okay, fine. So I Yeah. will Thank you upload very it. much. I'll put it on the description, the link of that PowerPoint presentation. यस, थैंक यू वेरी मच। और विनोद जी, मैं आपको एक अपडेट दे दूं और आपको सुलेमान भिमानी जी तमाम लोगों को भी दे दूं कि एक सर्वे हुआ है केपीएमजी इंडिया का, जिसमें ये कहा गया है कि ज्यादातर लोगों की राय है कि 2,50,000 से जो लाख से बढ़ सकता है आयकर छूट की सीमा। 1 फरवरी को हमारे जो आम बजट आना है उसमें 2.5 लाख से ऊपर बजट का एक सर्वे आया है। उस सर्वे के आधार पे ये है कि 2.5 लाख से ऊपर छूट सीमा दी जानी चाहिए। ऐसा सर्वे हुआ है एक केपीएमजी इंडिया का। तो ये सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए, निर्मला सीतारमन जी और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, कि क्या आम आदमी की सीमा इनकम टैक्स की, आयकर छूट की कहाँ तक दी जाए, ताकि वो इनकम टैक्स से जो गाड़ी खरीद सके ज्यादा पैसा देके। बिल्कुल सही बात। थैंक यू वेरी मच। यस सर। Thank you. धन्यवाद आपका। Thank you all, and with a request that you like this video, subscribe and share it with your contacts. यस, थैंक यू। गुड इवनिंग, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।